جب کسی خاتون کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ خاتون دوسرے نکاح کے لیے ایک خاص دورانیے تک انتظار کرتی ہے، اور اس دورانیے کو دینی اصطلاح میں عدت کہا جاتا ہے، جو شریعت کے مطابق اس عورت پر لازم ہے۔ عدت کا دورانیہ ختم ہونے سے پہلے خاتون کی شادی کرنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے، اور فیصلے کے مطابق عدت سے پہلے خاتون کی شادی کو بے قاعدہ یا فاسد کہا جا سکتا ہے، مگر باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ فیصلہ ایک شہری کی دائر کردہ درخواست پر دیا گیا تھا، جس نے اپنی سابقہ زوجہ کے خلاف درخواست کی تھی، اور اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ جو دینی معاملات ہیں اس پر رہنمائی لیں، اور عدت ہے کیا، شریعت میں اس کی ضرورت کیوں ہے، کیا خاتون عدت کے دورانیے سے پہلے شادی کر سکتی ہے، کیا عدت گزارے بغیر کی گئی خاتون کی شادی کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ان سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی عفنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو اسی کیس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کریں کہ عدت جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے کیا، اور اس کی ضرورت کیا ہے، کانسیپٹ، اور پھر ہم اس پر آ جاتے ہیں کہ کیا عدت کے بغیر شادی ہو سکتی ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو پہلے تو عدت کا کانسیپٹ ذرا کلیئر کر دیجیے۔ اچھا جی، میں دو تین باتیں یہاں پر کروں گا عدت کے حوالے سے جو بڑی اہم پرنسپل نوعیت کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدت جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے، یعنی حدیث میں تو اس کی تفصیل آئی لیکن قرآن میں اس کو بڑا واضح کیا گیا، اور ہمیں پتہ ہے جو بات قرآن میں آئے وہ تقریباً اجماعی ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی، اور اس کو اسی طرح فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو ہم ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں نص ہے۔ تو عدت کے بارے میں دو نص قرآن میں بڑی واضح آئی ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں آیا ہے کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ بھئی اگر کوئی عورت عدت میں آ جائے، اچھا عدت جو طلاق جس عورت کو ہوئی ہے اس کی عدت یہ ہے کہ اس کو 3 ایام گزر جائیں، 3 پیریڈز، اور اگر وہ بڑی عمر کی ہو گئی یا چھوٹی ہے تو پھر اس کو 3 مہینے ہیں، یہ طلاق کی عدت ہے۔ اگر اس کو شی از پریگننٹ then she must be delivered، یعنی وہ ڈلیوری ہو جائے اس کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی۔ اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا، بیوہ ہو گئی ہے، تو اس کی عدت قرآن مجید کے مطابق 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس کو آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، بلکہ پیغام نکاح بھی نہیں بھیج سکتے، واضح نا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور۔ ہاں، لیکن اللہ نے یہ ایک رخصت دے دی کہ آپ کنائے میں اس کو نکاح کی بات کر سکتے ہیں، اور اس کی مفسرین نے مثال یہ دی ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہوگی، تو اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بھئی میں آپ کی طرح کی کوئی اچھی خاتون ڈھونڈ رہا ہوں، میرا بھی دل ہے کوئی اچھی خاتون گھر بنانے والی ہو جائے، ایسے اشارے میں کہہ سکتے ہیں، واضح اس کو پیغام نکاح منگنی نہیں دے سکتے، دینی طرف سے ریسٹرکشن نہیں، پیغام بھجوا سکتے نہیں، کسی اور کے تھرو بھی نہیں بھجوا سکتے۔ ویسے عام طور پہ تو ہمارے معاشروں میں پیغام نکاح کسی اور کے تھرو ہی بھجوایا جاتا ہے، لیکن کسی اور کے تھرو بھی کنائے میں کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ ایکسپلیسٹلی نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ بھی کلیئرٹی دیں گے کہ کسی عورت کا نکاح بھی عدت میں نہیں ہو سکتا، چاہے رخصتی بے شک انہوں نے ارادہ کیا ہو کہ بعد میں ہی ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ تو میں آگے جا کے بات کرتا ہوں نا، جب منگنی منع ہے تو نکاح تو بہت آگے کی بات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، اگلی آیت بڑی واضح ہے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کے کانٹریکٹ کو ہرگز پکا نہ کرو یہاں تک کہ عدت نہ گزر جائے، حتیٰ یبلغ الکتاب، یعنی قرآن میں جو بات لکھی پوری نہ ہو جائے۔ تو یہ تو قرآن کا حکم تھا کہ جو ہے نا عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آگے ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا کہ فاضل کورٹ نے جو فیصلہ دیا، اسی طرح کا ایک فیصلہ 2015 میں بھی لاہور ہائی کورٹ ہی نے دیا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، ایک اور وجہ جو سمجھ میں آ رہی ہے، اب یہ کیس مجھے اس کیس میں اتنی یہ بات نہیں لکھی ہوئی، اس کا پس منظر کیس میں جو ہے نا، آپ بھی ماشاءاللہ لائر ہیں، تو کیس نہیں ابھی بن رہی ہوں تقریباً تک آدھی تھوڑی سی، چلے وہ جو میڈیکل کالج میں جا رہا ہوں نا، اس کو ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں سب لوگ، تو وہ اس میں کیس کا کانٹیکسٹ اور پریٹیکسٹ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پس منظر کیا اصل میں ہوا کیا ہے بہت دفعہ۔ اب دیکھیں اس کیس میں کیا ہوا ہے کہ ایک عورت کو خلا ہوئی ہے، یعنی ڈسولوشن آف میرج ہوئی ہے، یعنی اس کو طلاق نہیں دے رہا تھا، اس نے کورٹ سے لیا ہے اور اس کے بعد اس نے نکاح کر لیا ہے۔ ادھر شوہر صاحب چلے گئے ہیں کہ جناب یہ ان کے اوپر آپ بدکاری کا کیس لگائیں عدالت میں۔ اب بظاہر یہ انتقامی کارروائی لگ رہی ہے کہ شوہر کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی زیادہ
आपस के नाशाकी बढ़ गई है कि शौहर जो है वो अपनी साबका बीवी पर जिना का केस अदालत ही चले गए। अदालत चला। होता क्या है आमतौर पे कि एक बात तो है कि शौहर बीवी को तलाक नहीं दे रहे होते अगर वो तलाक चाह रही होती है। अब इससे भी अल्लाह ने कुरान मजीद में मना फरमाया, इसको मुअल्लिका कहा है कि एक शौहर अगर तो जुल्म कर रहा है या तंग कर रहा है और बीवी बेचारी छूटना चाह रही है और वो उसको तलाक नहीं दे रहा, तो ये जुल्म है शौहर की तरफ से। और हमारे पाकिस्तान में ये जुल्म बहुत ज्यादा होता है कि मेंटल टॉर्चर किया। बिल्कुल सही है। मुफ्ती साहब की आवाज जो है वो शायद उसका कुछ मसला है। जी अब आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है। अच्छा चलें, सॉरी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जुल्म हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है कि औरत बेचारी, इसलिए उस औरत को कोर्ट जाना पड़ता है फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लेने के लिए। सही। अच्छा, अब क्या हुआ कि बज़ाहिर ये लगता है कि शौहर ने सारी इंतकामी कार्रवाई। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। जी बज़ाहिर लग रहा है शौहर ने इंतकामी कार्रवाई की। तो मैं एक तो ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये शरीयत में मना और हराम है। अगर मियाँ बीवी में नहीं बन रहा तो फिर तलाक दे देनी चाहिए, उस औरत को लटका के नहीं रखना चाहिए अगर वो बेचारी मांग रही है। अच्छा, तीसरा, खातून ने अगर वाकई इद्दत में शादी कर ली है तो ये दुरुस्त नहीं है, जैसे हमने कुरान की आयतें देखी। ठीक है, ये दुरुस्त नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब जो कोर्ट ये कहता है कि ये शादी जो है वो बातिल नहीं करार दी जा सकती, तो अब दीन क्या कहता है? क्या ये शादी जो है वो बातिल करार दी जाएगी, दोबारा होगी, या ये कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा? ये फिर दीन इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है कि अब ये शादी हो गई है अगर? अच्छा, ये ना बातिल और फासिद, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं। ये अगर आप आसान अल्फाज में आवाम के लिए समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। आसान अल्फाज में ये समझ लें कि दो टर्मिनोलॉजीज हैं। बातिल आमतौर पे उस निकाह को कहा जाता है जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक हो कि ये निकाह जायज नहीं है। ठीक है। तो और फासिद उसको कहते हैं कि जिसमें किसी का इख्तिलाफ हो। मसलन वली के बगैर कोई औरत निकाह कर ले तो इसमें इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि निकाह हो जाते हैं, औरत खुद अपना निकाह कर सकती है अगर वली ना भी हो, और इमाम शाफी, इमाम मालिक कहते हैं कि नहीं हो सकता। तो वो तो है, लेकिन अपनी बहन से निकाह करना, इस पर इत्तिफाक है कि ये हराम है। इसी तरह ये जो इद्दत में निकाह करना है, ये भी इत्तिफाकी बात है। तो हमारे फाजिल जज साहब ने जो कहा है कि ये फासिद है, ये बात समझ में नहीं आ रही। असल में उन्होंने जो रेफरेंस लिया ना, उन्होंने रेफरेंस लिया है बेलीज डाइजेस्ट को, जो एक अंग्रेज का लिखा गया था, एक इंग्लिश मुल्ला जिनका नाम था मुल्ला फरनूज, उनका लिखा गया था। तो हम शरीयत में इस तरह नहीं करते। एक्चुअली गो टू द ओरिजिनल रेफरेंसेस, और ओरिजिनल रेफरेंसेस जो है वो कुरान, हदीस और फिक़ह की जो ओरिजिनल किताबें, उनकी तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए उनसे लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ से। ये निकाह फासिद नहीं है, बातिल है। और बातिल का मतलब शी हैज टू डू अ निकाह अगेन, जब इनकी इद्दत पूरी होगी उनको निकाह दोबारा करना होगा। बिल्कुल ठीक है। और वो उन्हीं साहब से दोबारा वो निकाह कर लेंगी तो ये मसला हल हो जाएगा। मतलब इसमें कोई और कोई इतनी बड़ी, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जब तलाक हो जाती है किसी मियाँ बीवी की और वो एक दूसरे के लिए साबिका हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कोई मिसालें मौजूद हैं या कोई ऐसे अहकामात हैं कि जो दीन ने दिए हों कि एक दफ़ा तुम्हारी बीवी ने तुमसे तलाक ले ली, खुला ले लिया, या तुमने उसको तलाक दे दी, तो उसके बाद अब ये चीज़ें हैं, तुम उसको तंग करने के लिए उसके घर के बाहर जाकर, या इस किस्म की भी चीज़ें होती हैं, धमकियाँ दिलवाते हैं तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, और मतलब वो भी एक जिद वाला भी एक फैक्टर है, रिवेंज को, जिसको आप यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। इसके हवाले से कोई मिसालें या अहकामात मौजूद हैं? असल में ये हमारे माशरे में जितनी जो चीजें हो रही है ना, ये शौहरों की जानिब से जुल्म, और हमारा ससुराल उमूमन जालिम है, तो इसकी वजह ये असल में जाहिलियत का तरीका है। और आप हैरान होंगे कि यही सारे काम जाहिली अरब में हुआ करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो औरतों पर इस किस्म के जुल्म हुआ करते थे, और कुरान ने एक्सप्लिसिटली इन जुल्मों पे रद्द किए। अब ये जो आपने सवाल किया, एग्जैक्टली ये कुरान सूरह निसा में है। अल्लाह ने फरमाया ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहा, कि भी औरत को आप माले विरासत नहीं बना सकते। आपने जब तलाक दे दी, होता क्या था, जब तलाक दे दी या शौहर मर गया, अब शौहर के घर वाले या शौहर वो कहते थे ये हमारी प्रॉपर्टी है। भाई आपकी, शी इज नॉट अ प्रॉपर्टी, शी इज अ ह्यूमन बीइंग। तो वो आपने जब तलाक दे दी, आपका हमेशा का रिश्ता खत्म हो गया। अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप उस पर किसी किस्म का दावा नहीं कर सकते, उसको किसी किस्म बात पे फोर्स नहीं कर सकते। शी इज अ फ्री वुमन एंड शी कैन डू एज शी विशेस। तो ये कुरान का हुक्म है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे पूछनी थी वो ये कि जब तलाक हो जाती है तो वो जो इद्दत का जो दौरानिया है वो
कहाँ गुजारती है औरत? क्या वो अपने मैके में जाकर गुजारेगी या वो अपने शौहर के घर में भी गुजार सकती है और उससे कहती है कि तुम इस चीज़ का इंतज़ाम करो कि मैं अकेले रहूँ, या वो शौहर जो है वो उसके लिए अलग भी इंतज़ाम करे, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है? ये ज़रा बताइएगा। हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है। देखिए, असल हुक्म तो ये है कि इद्दत शौहर के घर में गुजारनी जरूरी है। अच्छा। क्योंकि इद्दत में निकाह का असर बाकी होता है, ठीक है। इस काइंड ऑफ थोड़े से साइंस बाकी होते हैं। तो और वो इसलिए होता है कि यानी उसकी बहुत सारी वजूहात हैं शरीयत में। तो अल्लाह का हुक्म है इसलिए मानना है, वजह समझ में आए। लेकिन जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म बयान फरमाया कि भी देख लिया जाए कि कुछ कोई पेट में बच्चा तो नहीं है, क्योंकि शरीयत इसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि नस्ब की हिफाजत हो, लीनियज की। और हम जो देखते हैं मगरबी माशरा है, वहाँ इसका ख्याल नहीं। मैं यूके में हूँ काफी अरसे से, तो यहाँ पर इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन शरीयत में इसकी बहुत पिकलर है। तो उसमें यह है कि शौहर के घर में शौहर की जिम्मेदारी है वो खर्चा बर्दाश्त करे और छत दे। अच्छा, अगर तो 3 तलाकें नहीं हुई, 1 या 2 तलाक हुई है, तो फिर तो कोई पर्दे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो ये है कि अभी शौहर रुजू कर सकता है, बेहतर है शौहर रुजू करे निकाले। लेकिन अगर 3 तलाकें हो गई हैं तो फिर वो घर में तो औरत शौहर के रहे लेकिन पर्दे के साथ रहे, उसका खर्चा, उसके बच्चों का खर्चा वो शौहर बर्दाश्त करेगा। बट अगर सिचुएशन हॉस्टाइल है, जी एक मैं बात करूं, अगर सिचुएशन हॉस्टाइल है, यानी शौहर जुल्म करता है, मारता पीटता है और औरत के लिए वहां रहना मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो फिर वो अपने माँ बाप या किसी और घर में रहेगी और शौहर फिर भी उसका खर्चा शौहर के सर पर ही होगा। ठीक है। और इस पे भी बड़ा इबाम होता है, लोग कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकल सकती। अब अगर कोई औरत अकेली है या उसको जरूरत है, या वो मिसाल के तौर पे कोई ऐसी स्टूडेंट है, वो पढ़ रही है, उसके कोई इम्तिहान है या कुछ कहीं काम करती है, अपना सारा उसने खर्चा चलाना है, शौहर नहीं दे रहा खर्चा, तो फिर क्या किया जाए? देखें, शरीयत ने जहाँ उसूल बयान है वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी बयान की है। हम कहीं भी लॉ पढ़ते हैं ना, लॉ आपकी भी फील्ड है, मेरी भी फील्ड है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ लॉ में, तो लॉ में होता है अनलेस इन डायर सर्कमस्टांसेस, हर कानून में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो शरीयत ने एक उसूल बयान किया, नमाज का बयान किया, भाई वुजू करना है, और अगर आप वुजू नहीं कर सकते तयम्मुम कर ले, तयम्मुम भी नहीं कर सकते उसका भी रास्ता है, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के। तो इसी तरह यहाँ शरीयत ने बयान किया कि भाई इद्दत तलाक वाली को तो बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अच्छा खर्चे की बात, खर्चा तो शौहर बर्दाश्त करेगा। बट अगर कोई सिचुएशन है, शिकन को, अच्छा जिस औरत जो बेवा है उसकी इद्दत के जो हकाम है वो थोड़े से नरम है, वो दिन में बाहर जा सकती है क्योंकि उसको ज़ाहिर काम वाम की जरूरत है, रात में नहीं। लेकिन जैसे आपने केसेस बयान किया, उसके कोई एग्जाम्स हैं या उसको कमाना है, अपने काम करने, ग्रोसरीज लाने के लिए कोई नहीं है, देन शी कैन गो आउट, लेकिन उस वक्त के लिए, जरूरत के लिए। अच्छा ठीक है, अगर हमारे पास 1 मिनट है तो मैं एक और सवाल कर लूँ, मुझे बता दें। अच्छा चलें ठीक है, हम फिर मजीद फिर इस पूरे मामले को, सवाल तो बिल्कुल चलते रहेंगे, हम इसको मजीद डिटेल में फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपसे मुफ्ती अफनान साहब, आपने वक्त दिया। और ये तमाम मामला जो है वो हमारा मकसद ये होता है कि हम अपनी भी इस्लाह कर सकें और आप लोगों के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकें।